Good evening, everyone. A dream time for all ND aspirants as well as FCAT aspirants who have qualified their written examination, as well as all the candidates who has been shortlisted for their service selection board. बहुत सारी एंट्रीज हैं, लेकिन अब सवाल एक आता है कि जब आप पहले दिन जाएंगे और पहला जो टेस्ट होगा आपका बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, ये बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए समस्या का विषय बन जाता है. सो इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू हेल्प यू आउट कि क्या ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप स्क्रीनिंग टेस्ट में आराम से क्वालिफाई हो सकें और फिर सेकंड स्टेज में अच्छे से परफॉर्म करके और फिर अपने ड्रीम करियर को जी सकें. So everyone knows this is a test which is divided into two phases. One is your OIR test and second is your picture perception and discussion test. First, talk about OIR test, what it is. All the candidates will be getting two set of OIR questions. Set A, it means verbal questions. Set B means non-verbal questions. It is OMR based test and all candidates will be getting two OMR sheets. The candidates carrying odd chest number like 1, 3, 5, 7, 9, 11, all odd chest numbers will be getting set A, and candidates who are carrying even chest numbers will be getting set B. You will be getting a time of around 30 seconds multiplied by number of questions. Like if you are getting 50 questions, you will be getting 25 minutes. Though it is set 25 minutes, you will be getting 20 to 22 minutes only. So speed of decision, one important thing. OMR भरते समय आप ऐसा ना करें कि सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर ले और उसके बाद में OMR भरेंगे, इतना टाइम मिलता नहीं है. तो आप जो जवाब आते जा रहे हैं साथ साथ OMR शीट पर भरते जाएं एंड मेक श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना. सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन OIR टेस्ट, सो इट इज ऑल यूजलेस लिविंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस. यू विल बी losing some of your marks, then it will definitely affect your OIR rating. Once the half of the time is over, you will be again asked to stop writing and interchange your booklet. आपस में बुकलेट्स बदल लेंगे. ऑड चेस्ट नंबर्स वाले कैंडिडेट अपनी बुकलेट्स इवन चेस्ट नंबर वालों के साथ चेंज करके इंटरचेंज करके आपस में फिर से उतना टाइम आपको मिलेगा और फिर दूसरे OMR शीट पर आपको फिर से सॉल्व करने हैं. तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? एक तो आप क्वेश्चंस ना छोड़ें, रीजनिंग की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, खास करके डाइस के क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए. डायरेक्शन क्वेश्चन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, डिक्शनरी क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ करके जाएं. ये आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके OIR को ठीक रखने में. दूसरी चीज़, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टेस्ट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. यू विल बी shown a picture which will remain hazy or blur picture. You'll be getting 30 seconds to observe that picture. You got a sheet on which top there is a box. Below that box, action is written. You have to fill up this part, mentioning how many characters you have seen, identifying them, mentioning all the characters individually with their gender, approximate age of the character as well as mood of the character. अपने मेन कैरेक्टर को सर्कल जरूर करें, बाकी कैरेक्टर्स को आप ऐसे ही छोड़ दें. जो आपको एक्शन नजर आ रहा है उस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, या टाइटल एक अपनी कहानी को जैसे दिया जाता है उस तरीके से
छोटा सा एक एक्शन लिखना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पिक्चर. नाउ व्हेन यू फ्रेम a story, an imaginary story. So, what I would like to suggest all the candidates, avoid describing the picture, frame an imaginary story around it, having one main character whom you people call hero. You need to identify your hero clearly. There will be no picture in PPDT shown where you can see a crowd or uncountable number of characters. Even there will be no picture where you will not be finding any character. तो कैरेक्टर का होना जरूरी है उसके अंदर, और इतने कैरेक्टर्स कभी नहीं हो सकते हैं पीपीडीटी की स्लाइड में जो कि अनकाउंटेबल हो. तो आप सभी कैरेक्टर्स को अलग से आइडेंटिफाई करते हुए जेंडर, एज और उनके मूड से डिनोट करेंगे. मेन कैरेक्टर को सर्कल जरूर करें, एक्शन क्लियरली लिखें, और एक इमेजिनरी कहानी. अब इमेजिनरी कहानी जब लोग फ्रेम करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो पहले से अच्छी अच्छी कहानियां रट के आते हैं उनको लगाते हैं, वहां पर लिख देते हैं. तो ये आपकी ज़्यादा मदद नहीं करता है, क्योंकि आपकी जो इमेजिनरी स्टोरी है वो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए आपके बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर. बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको, और एक्शन कैरेक्टर्स का क्या है, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होनी चाहिए आपकी कहानी. तो इट शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू दैट. जो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिक कहानी लिखते हैं जो उससे रिलेटेड नहीं होती है, उनके भी चांसेस अच्छे नहीं रह जाते हैं स्क्रीन इन होने के. Let your story be a simple story, a simple but good imagination and clarity. अपनी कहानी ढंग से पूरी कर पाएं. इसके बाद जब आपको ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में अपनी कहानी को बार बार दोहराते रहें. सपोज यू आर गेटिंग हाफ एन आवर ऑफ टाइम फॉर रिफ्रेशमेंट ब्रेक. उस रिफ्रेशमेंट ब्रेक में जब आप टेस्टिंग हॉल से बाहर जाते हैं, 5 या 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक, और उसके बाद अगर 20 मिनट आपके पास हैं तो उस 20 मिनट में आप अपनी कहानी को बार बार दोहराते रहिए. इससे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे. अगर आपको ज़रूरत लगती है तो थोड़ा बहुत अपनी कहानी के अंदर बदलाव ला सकते हैं उस रिफ्रेशमेंट ब्रेक के दौरान, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी पार्ट होगा वो होगा इसका नरेशन. तो नरेट जब अपनी स्टोरी को करें तो बहुत कॉम्प्रेस्ड, it should be loud, clear and compressed. You must be audible enough. आपकी बातचीत हर किसी को सुनाई दी, एक एक शब्द आपका जो है सफाई से समझ में आए. नरेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपनी कहानी को बोल दें. कहानी जो आप बोलें वो कहानी दूसरों को बड़ी सफाई से समझ में आए. उसका जो फ्लो है, आपका जो लहजा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो उसमें नजर आना चाहिए. तो नरेशन पर विशेष ध्यान रखें सभी कैंडिडेट्स. इसके बाद फिर यू विल बी आस्क्ड टू गेट इनटू अ ग्रुप डिस्कशन टू रीच ऑन अ कॉमन स्टोरी. आप कॉमन स्टोरी पर पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आपने जितनी देर डिस्कशन किया उस कैंडिडेट का इंटेंशन क्या था. यू वर इंटेंडेड टू गो ऑन टू अ कॉमन स्टोरी, या सिर्फ आप ग्रुप को भटका रहे थे. तो आपको उद्देश्य आपका साफ नजर आना चाहिए कि आप एक कॉमन स्टोरी पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और उसमें जो आपका सबसे बेहतर कंट्रीब्यूशन है वो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ग्रुप को. अगर ये चीज आपने ध्यान से प्रैक्टिस के दौरान कर ली, जो कैंडिडेट्स घर पे प्रैक्टिस करते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को अपने मोबाइल पर रिकॉर्डर में टाइम लगा करके नैरेट करें अपनी स्टोरी को. रोज आपको 4 से 5 स्टोरी नैरेट करनी है, और ये ध्यान रहे कि 40 से 45 सेकंड में आपकी कहानी नैरेट हो जानी चाहिए. ओवर एलैबोरेट ना करें अपनी कहानी को. अगर ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर स्क्रीनिंग में बहुत मदद होगी आपकी, और आप हर हालत में स्क्रीनिंग निकाल लेंगे, है ना. अच्छा OIR,
क्योंकि ये भी ध्यान रखिएगा OIR 4 और OIR 5 के स्क्रीनिंग इनके चांसेस ना के बराबर होते हैं, तो अपना OIR अच्छा रखना है। और OIR स्क्रीनिंग के अलावा आपको स्टेज 2 में भी बहुत मदद करेगा, इसलिए आपकी रेटिंग OIR रैंकिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अपनी कहानी को क्लैरिटी से लिखें, क्लैरिटी से बोले, नैरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर तैयारी अच्छी होती है तो फिर परफॉर्मेंस भी अपने आप अच्छा लगता है। और तैयारी के लिए एक सही जगह है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जहां लगभग 15 सेट OIR के जो बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न के ऊपर हैं। OMR बेस्ड टेस्ट होता है डेली आपका। डेली आपकी नैरेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है। एवरी डे वी मेक श्योर कि आपको एक स्क्रीनिंग स्टेज से जरूर निकाला जाए, अपार्ट फ्रॉम योर पार्टिसिपेशन इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO प्रोसेस एंड इंटरव्यू। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्थी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।